Assalamualaikum dear students, welcome back to the online mode of learning. I am Arun Nadeem and so we discussed about audit planning, we discussed about commencement of new audit procedure, characteristics of audit procedure, some kinds of different audit procedures, and we discussed auditing programming. And in this we discussed in the last lecture about the purpose of audit planning, some characteristics or purpose of audit planning. So now today we are going to discuss some contents of audit programming and also some advantages of audit planning. So in the contents of audit program, there are few characteristics we can say, or we can say the contents. The first content is the name. So the audit program contains name of the client, and the auditor can write name of the business, and there is need of complete address of concern in case of public limited company. So what we need in audit program, an audit program must contain the name of the client. आपका जो name है client का वो होना चाहिए, business का क्या name है वो written down होना चाहिए. So the auditor must have the name of the business as well, और complete address होना चाहिए. ठीक है, किसी भी जिस तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके केसेस में हमारे पास कंप्लीट एड्रेस भी होना चाहिए. सेकेंड इज़ द ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली द कंटेंट, सेकेंड कंटेंट इज़ ऑब्जेक्ट. सो द ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. हर तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के. और सो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स. ठीक है, a small business has few objects, while we can say the large companies have many other objects as well. So basically जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के, वो ऑडिट प्रोग्राम में जो है वो एक मस्ट हैव, वी कैन से वी मस्ट हैव दोज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द डेट. सो द ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स द डेट ऑफ start and the date of end, we can say, of the audit. तो हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम्स है उस स्टार्ट डेट भी उनको पता होनी चाहिए और एंड डेट भी पता होनी चाहिए. एंड द ऑडिटर कैन कंसल्ट द क्लाइंट बिफोर फिक्सिंग ऑडिट डेट. हम पहले ही, जो ऑडिटर होता है उसको पहले ही क्या करना चाहिए, उसको क्लाइंट से एक डेट जो है वो फिक्स कर लेनी चाहिए, सो दैट इट मस्ट बी कन्वीनियंट फॉर द मैनेजमेंट एज वेल. एंड द ऑडिट प्रोग्राम कैन शो द डिटेल्स ऑफ ऑडिट वर्क डेट वाइज. ठीक है, मैनेजमेंट के लिए भी ये कन्वीनियंट हो जाता है. और ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली डिटेल्स जो होती हैं ऑडिट वर्क की वो शेयर कर लेता है हर डेट वाइज, मतलब कौन सी डेट को क्या काम होना है, किस तरह से होना है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेशन. सो बेसिकली द ऑडिट प्रोग्राम्स कंटेन time limit of starting and completion of audit work, and the duration of audit period may be, we can say, 1 month, or the size of audit work becomes the basis of duration. अगर आपका, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपका ऑडिट वर्क ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर कम है तो टाइम कम लगेगा. Next is the accounting system. So the audit program contains the information about accounting system. आपका accounting system किसी भी organization का क्या है, किस तरह से follow किया जा रहा है. तो audit program जो है उसमें इस तरह की information about accounting system होती है. So the auditor can examine accounting system and procedures in operations. वो सारे procedures जो in operations हैं, ठीक है, accounting system को examine करते हैं auditor हमारे. ठीक है, किसी भी auditing program में. और the understanding of accounting systems help to develop auditing program. So अगर हमारे पास सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होगी किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम की, किसी भी एंटरप्राइज के अकाउंटिंग सिस्टम की, तो उससे हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक अच्छा डेवलप हो जाता है. ठीक है,
Next is the internal check. So the audit program contains notes about effectiveness of internal check system, and the effective internal check is helpful for the auditor, and we can say that he can apply test checking through checking due to the proper internal checking system. And if the system is not good, it increases the duties of the auditor staff, but if it is good, जब इंटरनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इफ इट इज़ गुड, तो इट डिक्रीजेज द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ. सो बेसिकली हम यहाँ कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो नोट्स कंटेन करता है किसी भी इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए. नेक्स्ट इज़ द ओल्ड रिपोर्ट. सो द ऑडिट प्रोग्राम्स कीप्स द कंटेंट्स ऑफ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट एज वेल. ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो सारे कंटेंट्स जो कि किसी भी जो ओल्ड रिपोर्ट रही होती है, ऑडिटिंग रिपोर्ट रही होती है, उसके कंटेंट्स को भी जो है वो रखता है अपने पास. एंड द ऑडिटर कैन पे अटेंशन टू द ओल्ड रिपोर्ट्स. ठीक है, एंड द वीकनेसेस ऑफ रिपोर्ट्स इन प्रीवियस रिपोर्ट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड इन प्रेजेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स. ठीक है, जो पहले हमारे जो प्रीवियस हमारी जो ओल्ड रिपोर्ट थी उसमें जो भी वीकनेसेस थी वो रिपीट नहीं की जाएं नए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या नए अकाउंटिंग सिस्टम्स में. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ टू नोट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट बेसिकली. नेक्स्ट इज़ टू नेक्स्ट जो हमारी कहेंगे कि जो कंटेंट है वो है दी चेकिंग बुक्स का. So the auditing program contains the details of checking account books, and the number of books kept is stated in the program basically. And we can say the books are distributed among auditing clerks, so the whole data may be examined. ठीक है, इस तरह की जो चेकिंग बुक्स होती हैं या हम ये कहते हैं कि बुक्स होती हैं, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट ऑडिटिंग क्लर्क्स में ताकि उनके पास डेटा जो है वो मौजूद हो, वो उसको एग्जामिन कर सकें. सो दिस वाज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के क्या कंटेन करते हैं ऑडिटिंग प्रोग्राम्स या उनकी क्या कंटेंट्स हैं. नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स. सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज़ द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क. Basically, auditing program is helpful to note the progress of the work, and we can say that audit program is a timetable that can show the work done on any particular date. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डेट में क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो ये एक टाइम टेबल होता है. हम कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली एक टाइम टेबल है. उसमें ये होता है कि द पेस ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम. किस पैसेज ऑफ टाइम से हमारा काम हो रहा है. ठीक है, किस पेस से हमारा काम हो रहा है, और एडजस्टमेंट्स किस तरह से जो है वो की जा रही हैं. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क. सो बेसिकली दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. Second advantage is the supervision of audit staff. So audit program is basically beneficial for the auditor as well. So he can supervise the activities of audit staff. ठीक है, बेसिकली जो हमारा ऑडिटर होता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कि वो अपनी एक्टिविटीज़ देख सकता है कि ऑडिटिंग स्टाफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो एक चेक एंड बैलेंस रख सकता है. ही कैन यूज़ द ऑडिट प्रोग्राम एज ए बेसिस ऑफ सुपरविजन, एंड एवरी पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क कैन बी कम्प्लीटेड एज पर स्केड्यूल. एज पर स्केड्यूल जो होता है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका कंट्रोल उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ स्टाफ देख रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस देख रहा है या किसी भी किस्म की डायरेक्शंस जो है वो ऑडिटिंग क्लर्क्स को प्रोवाइड कर रहा है सुपरवाइज़र. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये भी हमारा एक एडवांटेज है ऑडिटिंग प्रोग्राम का. थर्ड एडवांटेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑडिट क्लर्क्स. सो बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम इज़ यूजफुल फॉर ऑडिटर्स टू ट्रांसफ़र द वर्क ऑफ ऑडिटर टू अनदर क्लर्क. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वर्क भी हो सकता है. इन केस ऑफ इमरजेंसी एनी audit clerk can go on leave and the auditor can ask another audit clerk to continue the work of first clerk. ठीक है, so audit program provides help to
न्यू ऑडिट क्लर्क टू कैरी ऑन द वर्क फ्रॉम वेयर इट वॉज लेफ्ट, जहाँ पे उसको छोड़ा था न्यू ऑडिट क्लर्क जो होता है वहीं से वो काम स्टार्ट कर सकता है। तो हमारा ऑडिटिंग प्रोग्राम या हमारा टाइम टेबल या हमारा लिस्ट ऑफ वर्क जो जिसे हम कहते हैं वो उसी तरीके से ही रहता है, और उसको जो है नया ऑडिट क्लर्क जो है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। The fourth advantage is the audit staff needed. So audit program is helpful for determine the number of person needed to do work. कितना audit staff हमें ज़रूरत है हमारे auditing work के लिए. So the staff requirement is essential for every auditor, and the shortage of staff means slow progress. अगर shortage होगी तो slow process होगा, अगर शॉर्टेज नहीं होती है, इक्वली है, तो हमारा हम ये कहेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑडिट वर्क जो है दे आर वर्किंग। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड। सो देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड ड्यू टू ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट स्टाफ इज चेक्ड व्हाइल द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जब हम वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम अपने स्टाफ की जो है ऑडिटिंग स्टाफ वो चेक कर रहे हैं कि ईदर एबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस कितना है। सो ए गुड प्लानिंग इज एसेंशियल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, एंड द वर्क इज completed just as per schedule in this. Next advantage is the same work. So there is no need to issue new instructions due to change in audit staff. अगर audit staff change हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि न्यू इंस्ट्रक्शंस बनाई जाएँ, ठीक है। सो basically the nature of work remains the same, and the auditing clerk can never know their job just by reading the written program. जो लिखी हुई हैं written program बताए हुए हैं ऑलरेडी, उसी को ही उन्होंने फॉलो करना होता है। इसी तरीके से हमारा टाइम भी सेव हो जाता है उस तरह की, जब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं रिक्वेस्ट कर रही होती हैं तो टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द टाइम टेबल. So the audit work is completed within stated time period, and the saving time means saving of labor, and the auditor can control the cost of audit due to the fixed time. So he can arrange audit work of other business concerns as well, ठीक है। तो जितना हमारा टाइम जो है वो ऑडिट मतलब टाइम पीरियड पे एक गिवन टाइम में हो रहा होगा, उतना ही हमारा जो है वो लेबर सेफ हो रही है, ठीक है। कंट्रोल भी कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ ऑडिट को इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क, कि वो देखे कि हमारा टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम पीरियड पे हमारा वर्क जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुअर वर्क. सो ऑडिट प्रोग्राम इज़ यूजफुल फॉर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंट स्टाफ बेसिकली, and audit program is schedule of work to be done by auditors, and every staff member is given some duty to do audit work. Also the staffs are responsible for completion of work, and the performance is noted, and responsibility is fixed for poor work. So बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम जो है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उनको फिक्स कर रहा होता है किसी भी नेग्लिजेंट स्टाफ की या केयरलेस स्टाफ की, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम इज़ स्केड्यूल ऑफ वर्क टू बी डन बाय ऑडिटर्स, ठीक हो गया इसमें। और हम ये कहेंगे कि हर तरह का जो वर्क है उसका जो स्टाफ मेंबर है वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं जो उसको असाइन किया गया है। Next is the guide to the audit assistant. Basically audit program serves as guide to the audit assistants, and they can start and complete work with the help of audit program, ठीक है। audit program को देखते हुए audit जो staff होता है या audit assistants जो होते हैं वो अपना काम मुकम्मल कर रहे होते हैं। so moreover it serves as a guide for the future, ठीक है, future के लिए that is a guide. The next is dealing with the new clients. So audit programs is helpful for dealing with the new clients. किस तरह से the spare time of audit staff can be used for doing audit of new clients, ठीक है।
अगर उनके पास स्पेयर टाइम है तो वो न्यू क्लाइंट्स को भी उनके लिए ऑडिट कर सकते हैं। एंड द होल ईयर टाइम कैन बी डिवाइडेड, इस तरह से पूरे साल का टाइम हम डिवाइड कर लेते हैं। एंड द ऑडिटर कैन ऑडिट द अकाउंट ऑफ वेरियस कंसर्न्स अंडर ऑडिट प्रोग्राम। अगर हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम होते हैं बने हुए हैं तो उस तरह के उसी ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए बहुत सारे बिजनेस कंसर्न्स के ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ वर्क डन। So audit program serves as a proof of work done. In court of law, we can say auditor can avoid liability for negligence, and audit program is a permanent record of any audit procedures. ठीक है, basically it shows the work performance state wise, and therefore he cannot be held responsible for carelessness. So ये जो हमारे पास audit program जो है वो एक proof भी कहा जा सकता है कि जितना काम कर लिया उसका प्रूफ भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ताकि कल को कोई इस तरह की जो केयरलेसनेस की बात आई तो उनकी लायबिलिटी ना हो। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग ऑफ न्यू ऑडिट क्लर्क्स। सो ऑडिट प्रोग्राम जो होती है वो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर भी काम कर रहा होता है ऑडिट क्लर्क्स के लिए। सो दे कैन लर्न हाउ टू प्रिपेयर प्रोग्राम फॉर वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस कंसर्न्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम ऑडिट प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। In the next lecture we will be discussing the disadvantages of audit programs and also the ऑडिट नोटबुक हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट नोटबुक होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम सब वर्किंग पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। सो any question, any query you want to ask me, you can ask me on our WhatsApp group. That is all for today. Thank you so much.